मैं बिहार से भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा से मैंने हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। और पूरे देश में आप कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग डेमोक्रेसी पर काम करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं कि कैसे सच्चे मायने में डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित हो। अच्छा, आपको सम्मानित किया गया है इसके बारे में? हाँ, ओएसिस ग्रुप ने मुझे डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया है मेरे सोशल वर्क को लेकर के और डेमोक्रेसी पर काम करने के लिए। Armed Forces. I retired in 2017 as Commandant of the Defence Services Staff College, which was one of the finest staff college for mid-level leadership and jointmanship, based in Wellington. Today I was very fortunate that I've been called here by Dr. Sushma ji, who happens to be the Chancellor as well as founder of the Oasis Global University. It's a matter of great honor and privilege to be here today on this platform, because I feel that today I had a fine opportunity to be able to articulate my views on good governance in India as far as democracy is concerned. And not only that, my book, From War to Peace, Good Wisdom and Governance, Ex-Servicemen, Rural Development. I wanted to speak much more about it, but I think time was at premium, so therefore I could not exemplify or elaborate too much. But I just want to say two things. Firstly, that in as far as good governance is concerned, we are very proud of our country, that is Bharat. There is no other country in the world as compared to ours which could possibly at any particular moment of time talk about legislature, judiciary, media and executive. You see, these four pillars are having a very fine symbiotic connect. In great exponential measure, they have to complement each other. And when they do that, they synergize and produce a mega effect that is called a manifold effect. Now, once you understand or you try to comprehend that, you'll be able to understand that what carries the country today is not the cricket or it's not Maidan-e-Fateh. You know, what is it? It is basically an Indian like me, like you, who's interviewing me right now. We all are born in this beautiful civilization of the country. Our civilization goes back 10,000 and more years. We are not like any other banana republic of the country on this planet. I feel very proud of India because I am born in a country जिसकी बहुत अच्छे रस्म रिवाज हैं, जिसकी तारीफ आप शोर आफाक कर सकती हैं, जिस हर एक इंसान, हर एक मर्द जो है उसका अबद और इखलाक है, हर एक लड़की जो है, हर एक हमशेरा जो है उसकी हुस्न और सीरत, उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हो। जहाँ इंसान को अपने वतन के बारे में इतना अच्छा कहना है, महसूस करना है, उसको 6 चीज़ें जो है मैं हर वक्त अपनी ज़िंदगी में अपने जवानों को बोलता था। जोश जुनून, मेहनत और मुशक्क़त और ईमान और वफ़ा। ये 6 चीज़ों के साथ इंसान जो है ये पूरे, ना केवल हिंदुस्तान, ये पूरी जो कायनात है, जो इस प्लैनेट के ऊपर, यू कैन कॉन्कर एनीथिंग। और एक मास्टर की है। वन स्टूडेंट आस्क्ड मी व्हेन आई वाज टॉकिंग एट अ ग्लोबल address, that is youth conference. He said that, sir, what is the master key to success? I said, there's only one master, and that happens to be pyar or mohabbat. It is only one thing. If you love your people, if you love your enemy, there is nothing which you cannot conquer in this world. So the vanquished will lie at your feet, and you will triumph in all battles. That is why I call it Har Maidan Fateh. So today's, I think, Sushma ji's program on 92nd birthday of Abul Kalam Sahab, I think is very significant, very vital, crucial, critical, significant, to the extent that multi-dimensional aspects, the magnitude in which we have spoken about good governance and democracy, and also about ex-servicemen's participation in rural development and making villages smart cities with their demeanor, deportment and their discipline, I think contributes in a very fine measure to make India the finest developed country
not 2047, but I feel Modi साहब ने कहा है 2047. I feel by 2040 we should be able to become a developed. Okay, sir. And Thank you. in the end, I'll only say that each and every citizen must manifest vision, values, and vitality, and execute it with perseverance, precision, and patience. But please remember, you must use your prudence and must have confidence. थे और मैं भारत का पूर्व राजदूत रह चुका हूँ और मैं ओएसिस ग्रुप और सुषमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ऑनरेरी डॉक्टरेट से मुझे सम्मानित किया। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि किस तरह से सुषमा जी ने और ओएसिस ग्रुप की जो ग्रोथ हुई है वो एक ऑलराउंड ग्रोथ हुई और उससे जो है किसी भी क्षेत्र की बात करें हम तो वो नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं उसमें और मैं उसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ज़रवास फेडरल क्लब की मैं दिल्ली एनसीआर की चेयरमैन हूँ, ऑथर हूँ और मैं सुषमा जी का और ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। एंड आई एम अ बिग I really appreciate her hard work and I appreciate the dedication with which the Oasis group of firms has really progressed, and today we are celebrating such a big event. I'm also the international chairperson for the Oasis films and anything to do with creativity, and I think Sushma ji is doing an amazing job, and thank you so very much for the honor. जो एक बहुत ही अच्छी संस्था चला रही हैं जिसमें इतने लोगों को एकत्रित करके उनको उनके काम को अप्रिशिएट करके उनको सम्मानित किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। और क्योंकि मैं इस आज की इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड हूँ, मेरा नाम एडवोकेट जूही अरोड़ा है, हम अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पैन इंडिया कोर्ट्स में हम अपेयर होते हैं और मेरी यही कोशिश रही कि मैं लोगों को ये समझा सकूँ कि हम आज के दौर में, क्योंकि हम आज की डेट में यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो हम बता सकें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिलते हैं लेकिन हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हम फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर हम देखें कि उस युग से जिस युग में श्री राम जी थे उस युग में भी उन्होंने अपने राजा सभा होने के बावजूद उन्होंने सब लोगों को इकट्ठे लेके चले, मर्यादा रखी, समाज में एक समानता लाए, तो इस तरीके से उन्होंने रखा। तो आज की डेट में हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए और क्योंकि आज एक अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन है नवरात्रों का, तो बिना नारी शक्ति के इस कार्यक्रम को ख़त्म नहीं करा जा सकता, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने नारी शक्ति इन्होंने अवार्ड भी रखा है, तो देखिए उससे भी नवाजा जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया काम है। प्रोग्राम की सक्सेस आप सबसे है, मेरे ऑडियंस से है, मेरे अवार्डीज से है, मेरे डिग्निटरी से है। मैं डॉक्टर सुषमा, चांसलर ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से, CEO एंड फाउंडर ओएसिस ग्रुप की ओर से। प्रॉक्टर हमारे बीच में हैं ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आनंद तिवारी जी। एंड मैं कहूँगी कि जो आपने सक्सेस का वर्ड दिया है, ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरी टीम की है जिसमें सब ने डे नाइट काम किया है, जिसमें प्रॉक्टर साहब का बहुत रोल है एंड मेरी डिग्निटरीज का बहुत रोल है। मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमें कहा कि मैम ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए क्या कोई हम लोग कोई नॉमिनेशन बचा है क्या। मीन्स वो लोग हमें इस बात में कही जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो इससे मुझे लगा कि यस ओएसिस ग्रुप कुछ तो कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि ओएसिस ग्रुप मोर देन 30 ईयर्स हो गए हम लोगों को सोसाइटी में सर्व करते हुए। हम सोसाइटी में ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ओएसिस ग्रुप के मैं सबके साथ बताना चाहूँगी आपको कि हमारे ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसका आज लोकार्पण हुआ है, आपने देखा अभी, एंड ओएसिस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल हमारा, जिसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद जी आपके बीच में हैं, एंड ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस। ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमारा वैसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हमने इसमें भारत के हुनरबाज के ऊपर काम किया है। देश के कोने कोने से हमने बच्चों को सिलेक्ट किया। ऑलमोस्ट मेरे पास 4200 बच्चों का डाटा था और उसमें से हमने 700 को पहले सिलेक्ट किया एंड 700 को सिलेक्ट
करने के बाद डे नाइट हमने उनके ऑनलाइन ऑडिशन रखे, कभी मॉर्निंग 4 बजे ऑडिशन, कभी इवनिंग में, मीन्स डे नाइट हमने उनका ऑडिशन करके उसमें से 20 बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे दिन इस मंच के ऊपर। वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं, गोवा से है, पणजी से बच्चा आ रहा है मेरे पास। तो ये एक मेरे लिए मुझे था कि हाँ मैंने कुछ सोसाइटी के लिए किया है। एंड हमारा ओएसिस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर डॉक्टर साहब आप कहेंगे, हमने जो आज उन 15 ऑफिशियल्स हैं जिनको आज हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उसका श्रेय भी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी को जाता है, जिन्होंने मीन्स वो चीज़ें खोजी, वो हीरे खोजे हैं जिनको हम ओएसिस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल की थोड़ी सी बागडोर थमा सकते हैं। मीन्स हमारे इसमें इंटरनेशनल जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं। आज डॉक्टर APJ कलाम जी का जो जन्मदिन, उसी पर आ रही हूँ, रुकिए। मीन्स ये मैं थीम क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कलाम साहब के साथ 9 प्रोग्राम मुझे मिले हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर वही है। वो जिस तरह से वर्सेटाइल थे, वो जिस तरह से जुनूनी थे, ये जो आज का जो मैंने बताया कि ओएसिस ग्रुप का ये जो एक्सपेंशन चल रहा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। हमारा एक स्कूल मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, एंड उनकी ये प्रॉमिस था मेरे साथ कि डॉक्टर सुषमा उसके लिए मैं आपको हमेशा टाइम दूंगा उसका इनोग्रेशन के लिए। तो उनका ये जो 92वां जन्मदिन मुझे बनाने का सौभाग्य मिला है, ये जो उनकी देन थी ना मेरे साथ 9 प्रोग्राम की, ये वो सपना था कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं, क्योंकि कलाम साहब किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी से भी नहीं बंधे थे। वो सिर्फ मैं कहूँगी कि वो बाउंड्री से भी नहीं बंधे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ भारतीय ही थे। वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है जो हम सब के दिल में विराजते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है उनके जन्मदिन के ऊपर कि ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनोग्रेट हमने आज की है उनके जन्मदिन के ऊपर। पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम हमने आज इनोग्रेट की है उनके जन्मदिन के ऊपर। ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का इनोग्रेशन आज उनके जन्मदिन के ऊपर किया है। मिस हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे कि वो ये कास्ट है या वो कास्ट है। वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि कलाम साहब ये बात मिस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वही ज़िंदगी, मुझे लगता है कि यही मुझे लगता है कि हम सबकी धरोहर है और वैसा ही सबको होना चाहिए। तो वही मैसेज मेरा भी है कि मैं भी सोसाइटी का काम करते करते ही इस दुनिया से जब जाऊँ तो एक सबके दिल में बस के जाऊँ। बस ये नवरात्रि भी आज। हाँ, माँ भगवती का है। मीन्स मैंने जैसे अभी पहले ही कहा कि हम किसी धर्म के साथ या किसी उस बात के साथ नहीं जाएंगे। माँ भगवती एक एनर्जी, कॉस्मोस, प्रकृति, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जी प्लीज़, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम उसको एक रूप में ढालते हैं जिसे हम माँ भगवती कहते हैं। हम उसे शक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति कहते हैं, माँ की आराधना करते हैं। माँ मतलब कि मातृशक्ति की बात हो रही है, तो इस मातृशक्ति को कोटि शत नमन है। और ये नवरात्रि हम मातृशक्ति को सिर्फ मातृशक्ति ना कहें, हम माने भी उसे। अब तो देश की गवर्नमेंट भी मान गई, 33% तो इस मातृशक्ति को उन्होंने दे ही दिए हैं, राइट्स वो दे ही दिए हैं। तो ये जो हम नवरात्रे बना रहे हैं, ये उसको भी थोड़ा सा हम लोग एम्बाइब करें कि यस, गवर्नमेंट भी अब मान चुकी है कि यस 33% होना चाहिए। जबकि भारत का अगर हम कहेंगे तो भारत तो कभी से देवियों का देश रहा है। मीन्स कभी से, चाहे वो एक बिटिया ही क्यों ना हो, वो भी मातृशक्ति का ही रूप माने जाते हैं। Good morning. I am Major General Jagatbir Singh, retired. I am presently a distinguished fellow with the United Service Institute of India, which is India's oldest think tank. I was formerly Director General of Resettlement, and it's a great honor and privilege for me to have been called to this event by Sushma Ji, Dr. Sushma Ji of Oasis Global University and Oasis World Records. Now, the main issue that I wanted to discuss is the book by Lieutenant General S.K. Gadiok regarding which he calls From War to Peace, and this focuses on the employment and resettlement of ex-servicemen. Now, most people are not aware of the fact that a large number of servicemen retire every year, and the number of servicemen that retire every year is 60,000 people. But what people are not aware is the age group that they retire in. Now, of this 60,000 people, 12% retire in the age group of 30 to 35 years of age. 33% retire in the age group of 35 to 40 years of age. 44% retire in the age group of 40 to 50 years of age, and very few people retire in the age group above 50 years of age. Now, at a young age of below 40, 45, when you retire, you have a large number of unfulfilled responsibilities in the terms of the education of your children. And bulk of the service of these ex-servicemen have been spent away from their families.
So it's extremely important that they must be given a second career. They've got unique skill sets, they are highly trained, highly motivated, extremely patriotic, and they have served the nation. So it is the responsibility of the nation to look after them in their second career also and utilize this workforce which is available for their second career. Now, I wanted to say that the government does have schemes. There are people who come and help you. There are people which are laid down. The first thing is there are reservations in central and state government jobs, but the reservations are not adequate and the reservations are not vertical, but they are in a horizontal plane. The next is self-employment schemes. They are mainly as security guards, and certain amount of people get it for coal transportation or for running certain CNG or petrol pumps, but that is very few. And then the third lot, that is, is I talked about state governments, I talked about the private sector. So people look for jobs in the private sector, which certain organizations facilitate them. But what I wanted to say is that what has been highlighted today and in the book by General Gadiok is there are large number of ex-servicemen that retire, and these ex-servicemen should be used in the rural areas, because bulk of them belong to India's rural areas. At least 80% so far come from the rural areas, and these ex-servicemen must be utilized for good governance in the rural areas to ensure that your schemes get implemented in the correct manner. So democracy also involves the role and utilization of ex-servicemen to ensure that the development of the country takes place in the right direction by utilizing the skilled manpower and workforce.